Good evening, church, and welcome to Eden Springs online service. I'm Angela. It's such a joy that you could join us today. And I hope you had a wonderful week. And even if you haven't, in every situation, God's love is always there on us, and His faithfulness remains. As His word says, His mercies are new every morning. So, with that thought and with gratitude in our heart, I welcome Ian to lead us in worship today. Good evening and welcome to another online service. We're so glad that we can worship and praise with you. Tonight we're in Psalm 103, and Psalm 103 begins by saying, "Bless the Lord, O my soul, all my inmost being. Bless His holy name. Forget not all His benefits." And the psalm ends exactly the same way as it begins, where it says, "Bless the Lord, O my soul." And the beauty about praising God is Scripture teaches us that He dwells in the praise of His people. So there's power in the name of Jesus. And when we praise Him, that power is made available to us because He dwells in our praise. Okay, so wherever you are tonight, whatever you might be going through, however you might be looking at life, know that as you join in with praising the name of Jesus, He dwells in your praise. And because there's power in His name, that power becomes available to you now as you praise Him. And tonight I have two young boys joining with me. Ethan, as always, my partner on the cajon. And for the first two songs, we have Levi, who's also going to be singing with us. So let's bless the name of Jesus with these songs of praise tonight. Come on, why don't you put your hands together? Let's raise the sound of praise to Jesus tonight. Sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing. The King of glory, who rules and
that you've done. We recall and we recount, Lord, all of your benefits and all of your goodness to us, Lord. We want to thank you that you are for us. Therefore, it doesn't matter who comes against us. We are victorious in the name of Jesus. Let's sing it. Water you turn into wine. You open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Come on, you know it's the singing. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Say, water you turn into wine. You open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. And into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Raise it up now. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. That's our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. That's our God. Oh, that's who you are. So we fear nothing, Lord. We fear nothing that can come against us, because you are for us. So it doesn't matter what comes against us. We know that we are strong. We know that when we are weak, we are still strong. We are victorious, Jesus, because you are for us. So here we rest, Lord. In this knowledge, we rest here, in this place, knowing that we are safe, knowing that we are secure, Lord, in your hands, because you hold us so close. Just take a moment to rest in the security of God this evening. Know that He's holding you close in the palm of His hands. And let faith arise and doubt be shattered.
faith arise and all doubt be shattered. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now, in your hands I belong. You'll never let me go, so close I believe. You're holding me now, in your hands I belong. You'll never let me go. And you gave your life in your endless love. You set me free and showed the way, and now I'm found so close I believe. You're holding me now, in your hands I belong. You'll never let me go, so close I believe. You're holding me now, in your hands I belong. You'll never let me go. You never ever let me go. You never ever let me go. You never let me go. I know you are close, Lord. Never ever let me go. Never ever let me go. Never let me go. Now praise you in the storm, and I will lift my hand, 'cause you are who you are. No matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, though my heart is torn. I will praise you in the storm. I'll praise you in the storm, and I will lift my hand, 'cause you are who you are. No matter where I am, and every tear I cry, you hold in your hand. You never left my side, though my heart is torn. I will praise you in the storm, 'cause though my heart is torn, I will praise you in the storm. So no matter what comes my way, 'cause you were always there. No matter what comes my way, I know you always care. No matter what comes my way, you never let me down. No matter what comes my way, when I'm weak and I'm strong. No matter what comes my way, you were always there. No matter what comes my way, I know
matter what comes my way, you never let me down. No matter what comes my way, when I'm weak and I am strong. So close, I believe you're holding me now. In your hands I belong. You'll never let me go. Oh, oh. Bless the Lord, oh my soul. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, forever and always. Bless the Lord, oh my soul. Bless His holy name. Yes, I will bless the Lord, oh my soul, forever and always. Bless your name, Jesus, forever and always, Lord. We bless your holy name. May your praise always be on our hearts and be in our lips. Thank you, Father, that you dwell with us, you dwell in our praise. And even as we praise you tonight, you fill us with your power and you fill us with your strength, so that forever we can live to declare your praises. Bless the Lord, O my soul, forever and ever and always. Amen. Thank you, Ian, for leading us in a time of thanksgiving and just praising our Maker. And right now, getting into the word from Psalm 103 for today. And I welcome a God-fearing man, a man who is a pastor to many pastors in Nagpur, and a generous man and an absolute joy giver. Brothers and sisters, please help me welcome Pastor Aubrey. Let's read the Bible of Psalms 103. For David himself, bless the Lord, O my soul, and let all that is within me bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and never forget He had done for thee, who forgiveth all iniquities, who healed all thy diseases, who redeemed thy life of the destructions, who crowned thee with mercy and compassion, who satisfied thy desire with God. Things thy youth shall be renewed like eagles. The Lord doth mercies and judgment for all that suffer wrong. He had made His way known to Moses, His wills to children of Israel. The fraud He is compassionated and merciful, long-suffering and plenteous in the mercy. He will not always be angry, nor will He threaten forever. He had not dealt with us according to our sins, or rewarded us according to our iniquity. For according to the height of the heaven above the earth, He has strengthened His mercy towards that fear Him. As far as the east is from the west, so far had He removed our iniquities from us. As a father had compassion on his children, so had the Lord compassion on them that fear Him. For He knoweth our frame, He remembered that we are dust. Man's days are as grass, as the flower of the field, so shall he flourish. For the Spirit shall pass in him, and he shall not be, and he shall know his place no more. But the mercy of the Lord is from eternity and unto eternity upon them that fear Him, and His justice unto children's children, to such as keep His commandments
and are mindful of His commandments to do them. The Lord had prepared His throne in heaven, and His kingdom shall rule over all. Bless the Lord, all ye His angels, you that are mighty in strength, and execute His word, hearkening to the voice of the orders. Bless the Lord, all ye His hosts, you ministers of His that do His will. Bless the Lord, all His works in every place of His dominion. O my soul, bless thou the Lord. सभी मसीह भाई बहनों को पास्टर ऑब्री की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 103 से सीखने जा रहे हैं। तो मैं भजन संहिता 103 से पहला पद से 5 पद तक पढ़ूंगा। वहाँ पर भजन दाऊद का भजन है। ये दाऊद राजा ने भजन को लिखा है। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है भजन संहिता में दाऊद जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखा रहा है कि परमेश्वर हम लोग से कितना प्यार करता है, प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारा एक शत्रु है, अर्थात वो है शैतान, जो हमेशा हमारे विरोध में खड़ा होता है। और इसी भजन के द्वारा वो परमेश्वर के प्रेम को हमको सिखाता है। इसलिए वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसको धोखा देने वाला, सबसे बड़ा उसका मन होता है धोखा देने वाला। उसी को कहता है, इसलिए ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को के उस पवित्र नाम को धन्य कहे। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो प्रभु ने हमारे ऊपर बड़े बड़े उपकार किए हैं। कितना हमको परमेश्वर ने विपत्तियों से बचाया है, बीमारियों से बचाया, खतरों से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है। हम ऐसे महामारी के समय में, जैसे कोरोना का ये जो रोग चल रहा था, हम देखे हमारे आए दाएं बाएं कितने लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको ऐसे विपत्ति के समय में भी हमको बचा के रखा। इसलिए दाऊद कहता है, जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को तू कभी नहीं भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमें चंगाई दी है, हमें स्वस्थ भला जीवन दिया है, हमको अच्छा भला रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ परमेश्वर हमको ऐसी शिक्षा देता है, देना चाहता है अपने प्रेम के द्वारा, जो है हमारा मन विचारों का अखाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? विचारों का अखाड़ा। ये जो है मन में बहुत सारी बातें उत्पन्न होती है और मन में बहुत सारा युद्ध होते रहता है, और हमारे विचार हमेशा हमें मुसीबतों में डाल देती है। हमारे विचार हमेशा हमको क्या करते हैं? मुसीबतों में डाल देती है, अन्य और किसी चीज़ों से। और ये इसलिए होते हैं कि हमारे विचार शब्द या कार्य की जड़ें होती है, उसके रूट्स होते हैं, और जब ये रूट्स पकड़ते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए दाऊद इस भजन से कह रहा है, परमेश्वर के प्रेम को जानो और अपने मन को शुद्ध रखो, और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मनों को भर लो, ताकि जो है आपका मन जो है विचारों का अखाड़ा ना हो सके। यशायाह भविष्यवक्ता 55:8 में कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं होते हैं,
और तुम्हारे तरीके मेरे तरीके नहीं होते हैं। हम चाहे जैसा भी सोचते हैं, परंतु परमेश्वर ने हम अपने विचार अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल में लिख दिया है। परमेश्वर ने अपने विचारों को पवित्र बाइबल में लिख दिया है। इसलिए हमको क्या करना है? हमारे विचारों को परमेश्वर के शब्दों के द्वारा भर देना है कि हमारा मन जो है हमारा विचार एक जो है अखाड़ा न बन सके, युद्ध का स्थान न बन सके। इसलिए वो कहता है मैंने अपने पूरे विचार अपनी पवित्र पुस्तक में लिख दिया है। इसलिए हमें अपने विचारों को परमेश्वर के ज्योतिमय वचनों के द्वारा जांचने की जरूरत है। अपने मन को जांचे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हमें तैयार हम तैयार रहें कि हम अपने विचारों को हमेशा परमेश्वर के विचारों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि उसके विचार हमेशा बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के विचार बहुत अच्छे हैं। और दाऊद भजन संहिता 103 में यही परमेश्वर के प्रेम से हमको सिखाना चाहता है। तीसरी बात कहता है यही सही केंद्र बिंदु है। दूसरा कुरिन्थियों 4 और 5 में कहता है क्योंकि लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसको खंडन करते हैं। शैतान चालाकी और अपनी रणनीति से हमारे मन के विचारों में एक मजबूत गढ़ बनाना चाहता है। वो अपने चालाकी से हमारे मन में एक ही युद्ध का मैदान बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके वचन ऐसे होने नहीं देता है। हालेलुया। और यह कहता है बनाना चाहता है, मन के विचारों में एक मजबूत गढ़ बनाना चाहता है। गढ़ वो चीज होता है कि जिस क्षेत्र में हम कमजोर है वो क्षेत्र में हमें गुलाम बना देता है। जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरी है उस कमजोरी का इस्तेमाल करके हमको गुलामी में डाल देता है। मानो घूस, लालच, झगड़ा, चोरी इत्यादि। इस कारण हम अपने मनों को जांच ले कि हम कहाँ असफल हो रहे हैं और क्या हमारे विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर है। तो हमें ऐसे विचारों को यीशु के नाम, और नहीं है तो ऐसे विचारों को हमको यीशु के नाम से डांट कर निकाल देना चाहिए और अपने मनों को परमेश्वर के वचनों से भर देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि हम परख सके कि हमारे विचार कहीं शैतान की तो नहीं या परमेश्वर के हैं। इस फर्क को पहचानने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हर रोज बाइबल का अध्ययन हमको करते रहना है ताकि बाइबल हमको सारी ये बुराइयों से बचा सके। हमको सही क्या है गलत क्या है वो हमको दिखा सके और हम सही निर्णय लेकर हम ये सब बुराइयों से बच सकें। तो ये भजन संहिता 103 बड़ा सुंदर भजन है जो दाऊद अपने भजन में हमको सिखा रहा है। परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं और ये सारी मुसीबत से हम बच सकते हैं। जब लोग खालीपन या बेकार के समय बिताते हैं तो ये शैतान को अवसर देता है। इसलिए विचारों पर वो नियंत्रण रखने का जो हमें वो बर्बाद करने की कोशिश करता है और जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उन्हें भी बर्बाद या नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बहुत खतरनाक है। हम ही केवल उससे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन हमारे आजू बाजू जितने लोग होते हैं, जब हमारे जीवन में शैतान ऐसी नियंत्रण रखता है तो हम दूसरों के लिए भी जो है मुसीबत का कारण बन जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की सच्चाई से जीते हैं वो आशीष में जीते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, क्योंकि मन
युद्ध का अखाड़ा है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको ये अखाड़े को जो है शैतान के कब्जे में नहीं होने देना है। परमेश्वर के वचनों से हमको अपने मनों को भर देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात, मन के युद्ध के अखाड़े ये आप या जितने हो ये आरते, ये जो है केवल ये युद्ध हम जीत सकते हैं केवल परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से। जो युद्ध शैतान ने आपके मन में शुरू किया है, मेरी आपसे यह विनती है कि झूठी कल्पनाओं को, जो भी घमंड की बातें जो अपने को ऊंचा उठाती है, उनको आप यीशु के नाम से डांट कर अपने जीवनों से निकाल दे। छठवां पद यूं कहता है भजन संहिता 103 का, यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हालेलुया। तो दाऊद इस परमेश्वर के प्रेम से हमको सिखाना चाहता है कि हमारा परमेश्वर जो है दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करते रहेगा। उसने हमको हमारे अधर्म के कामों से उसने हमको छुड़ा लिया है, पापों से बचा लिया है, और वो चाहता है कि हमारा जीवन सच्चा मसीह जीवन परमेश्वर के वचन के आधारों पे जो होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में कार्यशील होने देना चाहिए। और परमेश्वर का वचन तभी कार्यशील होता है जब क्षमा करना हमारे लिए कभी कभी बहुत कठिन होता है, खासकर यदि कोई व्यक्ति बार बार हमें नुकसान और चोट और तकलीफ पहुंचाता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जिसे क्षमा करना आपको बहुत कठिन लग रहा है? आप याद करें, परमेश्वर की अनुग्रह के दान की क्षमा आपके जीवन में जिस प्रकार आपने परमेश्वर से क्षमा प्राप्त की है, उसी प्रकार आप भी दूसरों को क्षमा करें। तब जो है हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे और परमेश्वर का जो ये वचन है ये हमारे जीवन में कार्यशील होगा। और हम मत्ती रचित सुसमाचार के 18 के 21 से 35 में पढ़ते हैं कहानी के बारे में। पतरस ने प्रभु यीशु से पूछा कि हम कितने बार अपने भाई को क्षमा करें। विश्वासी होने के नाते हमको कभी भी जय के आनंद का अनुभव नहीं होगा यदि हम लोगों को क्षमा ना करें। यदि हम जय के आनंद का अनुभव चाहते हैं तो लोगों को बार बार क्षमा करते रहना चाहिए। हालेलुया। यही जो है भजन 3 में हमको सिखाता है कि तभी परमेश्वर हमारे भी अधर्म को वो क्षमा करता है, अपने हमारे रोगों को चंगा करता है। बहुत से मसीह भाई बहन आज जो है रोगों से जकड़े हुए हैं, परेशानी से जकड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को क्षमा नहीं किया है अभी तक। और परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि हम क्षमा करें। मत्ती 18, 21, 22 में कह के आधार पर हमको हर समय लोगों को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु अपने वचन में कहता है कि यदि हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा ना करें तो वो भी हमारी गलतियों को जो हम प्रभु के प्रति करते हैं वो भी हमें क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6 के 14 और 15 में ऐसा है, सोचे कि यदि प्रभु यीशु हमें क्षमा ना करे तो हमारी दशा क्या होगी। कल्पना करें हमारी दशा क्या हो जाएगी यदि प्रभु हमको क्षमा ना करे। हालेलुया। और यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमको क्षमा करे तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। हमारा रिश्ता प्रभु से खत्म हो जाएगा, हमारे जीवन में हर किस्म की रुकावटें आ जाएगी
हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों से नाराज होकर उन्हें क्षमा नहीं करते, लेकिन हम स्वयं ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाकर अपनी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। ये गलत भावना है। हम दूसरों को तो क्षमा नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जब गलती करेंगे हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमको क्षमा कर देगा। वो कहेगा पहले दूसरों को क्षमा करो तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूँगा। हालेलुया। पापों के प्रति। लेकिन परमेश्वर अपने वचन से कहता है यह नामुमकिन है। मत्ती 6:12। दूसरी बात, प्रभु की प्रार्थना में यीशु ने हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना सिखाया है। पिता परमेश्वर दयालु है और वह हमें सिखाता है कि हम यदि उससे दया चाहते हैं तो हम भी दूसरों पर दया करें या दया दिखाएं। हालेलुया, आमीन। तो हमको दूसरों को भी दया दिखाना है और यही प्रेम का जो संदेश दाऊद राजा ने भजन संहिता 103 में कहा है। और वो कहता है एक बड़ी समस्या लोगों के साथ यह है कि वे अपने आप के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं तो दूसरों के लिए क्या अच्छा सोचेंगे। लेकिन ऐसे लोग को स्मरण दिलाना या याद दिलाना जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम स्वयं से प्यार करना सीखें, अपने आप को अच्छा सोचें, तब हम दूसरों को भी प्यार कर सकते हैं, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोच सकते हैं। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें जैसा कि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। मत्ती 19:19 में लिखा है। और यह भी काफ़ी नहीं है कि हम अपने आप से प्रेम करें, पर हम और यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने आप का अच्छा समझे, पसंद करें। जब हम अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दूसरों से भी प्रेम कदापि नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं तब हमारे जीवन में प्रभु की आशीष और उन्नति और आनंद और खुशी प्राप्त होती है। कितनी आशीष हमको मिलती है। देखो, प्रभु के हमारे जीवनों में आशीष आएगी, उन्नति आएगा, आनंद आएगी, खुशी आएगी। कितनी आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा है। और ये और असंभव जो है, ये सब चीज़ें जो है हमको तब मिलेगी जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। और यहाँ पर लिखता है कि खुशी प्राप्त होती है और असंभव चीजें संभव होती हुए दिखती है हमारे लिए। हालेलुया। जो असंभव हो दिख रहा था, जो कार्य हो नहीं रहा था, वो हमारे लिए होते हुए दिखेगा। सब चीजें हमारे लिए संभव होती है, आश्चर्य कर्म होते हैं हमारे लिए जब हम एक सही मसीह जीवन, प्यार भरा परमेश्वर के वचन के आधार का जीवन जीते हैं। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आप को अच्छा समझते हैं, तो हम अपने पड़ोसियों से भी प्यार और अच्छा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। ये बड़े आनंद की बात है जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मत्ती सुसमाचार 19:26 में लिखा है, मनुष्य के विचारों के द्वारा हमें कभी कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि इन समस्याओं से बचना असंभव है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर अपना विश्वास और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर मानो हमारे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल देता है। ऐसा द्वार कि हमें कभी भी कल्पनाएं भी हमने की नहीं होगी। इतने अच्छे द्वार को परमेश्वर हमारे लिए खोल देता है। कितना अच्छा परमेश्वर है। क्यों ना हम उस परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके ऐसा जीवन मांगे। हालेलुया। हम कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने के लिए अपने जीवन में कोशिश की, लेकिन हम हताश हो गए और सोचने लगे कि यह होना असंभव है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को प्रार्थना द्वारा प्रभु के हाथों में सौंपते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी आसानी से परमेश्वर उस कार्य को हमारे लिए कर देता है। ऐसा कई बार हमारे जीवनों में हमने अनुभव किया होगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ये सब अनुभव परमेश्वर हमको देता है जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हाथों में अपनी कठिनाइयों को सौंप देते हैं, हम लोगों को क्षमा करते हैं, अपने आप को भी क्षमा करते हैं। कई लोग तो अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरों को भी क्या क्षमा करेंगे। इसलिए कहता है पहले अपने आप को क्षमा करो, अपने आप से प्यार करो और ये सारी आशीषों में जियो। हमें खुश होना चाहिए कि हमें ऐसा परमेश्वर की सेवा हमको मिली है जिसके लिए सब कुछ संभव है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारे पास आशा की और हमारा परमेश्वर उन समस्याओं से जो है हमें छुड़ा लेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर कठोर दिल, पापी दिल, नफरत, कड़वाहट दिल को नरम कर दिल वाले जैसा बदल देता है, तो पवित्र, प्रेमी और क्षमा करने वाले बना देता है। कभी कभी हम कल्पनाएं नहीं करते कि हमारा उद्धार कितना बड़ा आश्चर्यकर्म है। हमें परमेश्वर अपने उद्धार द्वारा नई सृष्टि बना देता है, नई शुरुआत प्रभु यीशु में हमें देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए ये सब खूबसूरत वचन को शुभ संदेश कहा गया है। हालेलुया, आमेन। ये परमेश्वर का शुभ संदेश वचन है और ये जितने भी वायदे परमेश्वर बाइबल में करता है वो हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को एक सुंदर जीवन, आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर बने, तो आप भी इस भजन संहिता को जब पढ़ते हैं तो समझे कि परमेश्वर आपसे इस भजन संहिता से क्या क्या कहना चाह रहा है। कितना सुंदर भजन है, दाऊद का भजन। और दाऊद जो है इस भजन को इतने अच्छे से लिखता है। और 11 पद में कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। वो अपने डरवैयों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, दयालु है। हम परमेश्वर की दया में हम जो है उसके पक्ष में जीने वाले लोग होते हैं। 14 पद कहता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी है। हालेलुया। हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं, इसलिए वो हमको हमारी सृष्टि को जानने वाला परमेश्वर है। मनुष्य की आयु तो घास के समान होती है, वह मैदान में फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया, आमेन। उसने कहा कि इतनी आशीष केवल हमको नहीं, हमारे नाती पोतों को भी वो इतनी आशीष देना चाहता है। कितना अच्छा परमेश्वर है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के सारे सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के सारी सृष्टि, उसके राज के साथ सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया, आमेन। कितना धन्य वचन है परमेश्वर का। वो कहता है कि तुम जो है मेरे डरवैये हो, तुम मेरी सेना हो, यहोवा की सारी सेनाएं। वो कहता है वो जो मेरी इच्छा को पूरी करते हैं, मैं उनको धन्य बनाना चाहता हूँ।
हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी करना हमको सिखाए, कि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें, आपके मुताबिक कार्य कर सकें, क्योंकि आपके पास हमारे लिए कल्पना है और जितनी भी योजनाएं हैं वो लाभ की है, हानि की नहीं है। आप हमसे अच्छा कार्य कराना चाहते हैं। हम तैयार हैं प्रभु आपके अच्छे कार्य करने के लिए और दूसरों को आशीष का जीवन बांटने के लिए प्रभु जी, ताकि दूसरे भी लोग आशीष में जी सकें, धन्य हो सकें, आपको भी धन्य कह सकें और आपके नाम की गवाही हम सब जगह आपके नाम को फैला सकें। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और अभी तक आपने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, तो आज के संदेश को सुनकर इन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हो, तो आज ये सुंदर मौका है कि आप प्रभु यीशु को ग्रहण करें, छोटी सी प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे मन में आ, मेरे जीवन में आ, प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपना चाहता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, अपने लहू से मुझे धो और शुद्ध कर, और मैं प्रभु तेरा दास या दासी बनना चाहता हूँ, तेरा बेटा या बेटी बनना चाहता हूँ। आप इतनी सी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, निश्चय आपको उद्धार देगा और आपको आशीष देगा। Amen. Thank you, Pastor Aubrey, for that wonderful encouragement from Psalm 103, which tells us that God satisfies our ears with good things. And now, brothers and sisters, let's get into a time where we come as we are and have the privilege to partake of God's love through the breaking of the bread and wine. So let's just bring ourselves and anything that we have on our heart, let's just lay it at His feet. Father God, we come to you in Jesus' name. Thank you, Lord, that you are a good, good Father. Thank you for the perfect sacrifice. Thank you for loving us, even through our weakness, God. Lord, you said at the cross that it is finished, that we know that you died for everything that was not needed in our life, God. So we just thank you and praise you, Father. I also lift up our dear sisters, that is Alicia and Irene, Lord, who are facing a time of discomfort, Lord, but they know that you are one, because by your stripes they are healed, God. So I pray, God, that you will comfort them, that you will bring healing in their bodies, God. I pray, Lord, that they will have a testimony to glorify your mighty holy name. Thank you, God, for this season of just being together and supporting one another, Lord. Give us the strength that we need, even as we trust that great things are in store for each one of them. We make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Let's take part of the bread and wine together.
Thank you, brothers and sisters, for joining us in today's online service. In case you want to get in touch with any of our leaders, our pastors, they are always there to pray for you, to listen to you. So our numbers will be coming up in the next screen. We meet again next week, same time, Saturday, 7:30 p.m. In case you want to share this link with a friend, do that. Let this be an encouragement, and let's share Jesus, because everybody out there needs to hear God's promises over their life. And just reminding of the wonderful promise that God had for us today in today's word, that is from Psalm 103, that God satisfies our ears with good things. So on that note, I'm going to leave you, and let's continue to pray for our sisters, that is Alicia and Irene. They need prayers because we know that God has a plan and a purpose for their lives. And all those who are unwell, send us a request for prayer and we'll be praying for you. Until then, take care and be rooted in Jesus. Goodbye.